گوری اپنے بیٹے نیلو کے ساتھ کرائے کے گھر پر رہتی تھی۔ اس کے پتی کا مرنے کے بعد اس کو پیسوں کی بہت دقت ہوتی تھی۔ گولڈی نیلو سے کہتی ہے، نیلو بیٹا، تم پریشان مت ہونا، ہمارے پاس پیسے ضرور نہ ہوں پر ہماری اوپر والے مدد ضرور کرے گا۔ نیلو کہتا ہے، ہاں ماں، پر ابھی جو مکان مالک کالو آنے والا ہے اس کا کرایہ ہم کیسے دیں گے؟ تبھی وہاں کالو آ جاتا ہے۔ کالو کہتا ہے، بہت دن سے کرایہ نہیں لینے آ پا رہا تھا، آج ٹائم ملا ہے، چل چڑیا اب میری کرایہ نکال جلدی سے۔ گولڈی کہتی ہے، کالو بھائی، میں آپ کو کرایہ دے دوں گی، آپ پریشان مت ہو، جیسے ہی میرے پاس پیسے ہو جائیں گے میں آپ کو دے دوں گی۔ کالو کہتا ہے، زیادہ باتیں مت بنا، جلدی سے میرا کرایہ نکال ورنہ میں تجھے اس گھر سے ابھی نکال دوں گا۔ گولڈی کہتی ہے، بس کچھ دن میں ہی میں آپ کا کرایہ دے دوں گی، پر ہمیں گھر سے مت نکالیں، میں اپنے چھوٹے سے بچے کو لے کر کہاں جاؤں گی؟ کالو نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے گھر سے باہر نکال دیا۔ پھر نیلو گولڈی کو اپنے ساتھ کیلے کے باغ میں لے گیا۔ گولڈی کہتی ہے، یہ مجھے کہاں لے آئے ہو بیٹا؟ یہ کس کا کیلے کا باغ ہے؟ نیلو کہتا ہے، ماں، میں آپ سے چھپ کر روز یہاں آ جاتا تھا اور میں نے ہی یہ کیلے کے پیڑ لگائے ہیں اور میں انہیں ہی دیکھ بھال کرتا ہوں۔ گولڈی کہتی ہے، بیٹا، تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ پر لگتا ہے تم نے بہت محنت کی ہے اس جگہ پر ہمیں یہاں سے نکلنا چاہیے اور رات میں رکنے کے لیے کسی گھر کو ڈھونڈنا چاہیے۔ تبھی وہاں پر ایک جادوئی کیلے کا گھر آ جاتا ہے، دونوں ڈر جاتے ہیں۔ تبھی آواز آتی ہے، میں جادوئی کیلے کا گھر ہوں، میری دیکھ بھال نیلو نے بہت اچھے سے کی ہے، اسی لیے میں تمہیں یہ جادوئی گھر رہنے کے لیے دیتا ہوں، اس گھر میں تمہاری ضرورت کی ساری چیزیں ہیں۔ گولڈی کہتی ہے، شکریہ جادوئی کیلے کے پیڑ اور شکریہ نیلو، تم نے اس باغ کی اتنی اچھے سے دیکھ بھال کی۔ گولڈی نے آج جلدی کھانا بنا لیا تھا۔ گولڈی کہتی ہے، چلو آج میں نے جلدی کھانا بنا لیا ہے، بہت دنوں سے جنگل میں لکڑی لینے جانا تھا، گھر کے کام کی وجہ سے میں جا ہی نہیں پا رہی تھی، آج میں جلدی چلی جاتی ہوں۔ یہ کہہ کر گولڈی چلی جاتی ہے۔ وہیں کالو چھپ کر گولڈی کے جانے کا انتظار کر رہا تھا۔ کالو کہتا ہے، یہ گوری کے گھر سے تو اچھی خوشبو آ رہی ہے، ضرور گولڈی نے کھچڑی بنائی ہوگی، مجھے تو بھوک بھی زوروں کی لگ رہی ہے، آج تو گولڈی کا کھانا ہی چرانا پڑے گا۔ یہ کہہ کر کالو گولڈی کے گھر آ جاتا ہے اور کہتا ہے، واہ واہ، کیا خوشبو ہے، کتنی سوندھی خوشبو ہے، میں تو آج پیٹ بھر کر کھچڑی کھاؤں گا۔ یہ کہہ کر کالو پوری کھچڑی کھا جاتا ہے اور وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ تبھی گولڈی واپس گھر آتی ہے تو کہتی ہے، ارے یہ میری کھچڑی کون کھا گیا، اب میں کیا کھاؤں گی، مجھے تو آج بھوکا ہی رہنا پڑے گا، لیکن میں اس چور کو چھوڑوں گی نہیں جس نے بھی میری یہ کھچڑی چرائی ہے۔ پھر گولڈی خالی پیٹ ہی سو جاتی ہے۔ اگلے دن گوری پھر کھچڑی بناتی ہے اور اس میں زہر ڈال دیتی ہے اور کہتی ہے، اب سمجھ میں آئے گا اس چور کو جو میری کھچڑی چراتا ہے، اب وہ میری کیا کسی اور کی بھی کچھ بھی نہیں چرا پائے گا۔ یہ کہہ کر گولڈی گھر سے چلی جاتی ہے۔ پھر کالو اس کے گھر میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے، واہ واہ، آج پھر کھچڑی بنی ہے، کتنی اچھی خوشبو ہے، آج پھر میں اس بے وقوف چڑیا کا سارا کھانا کھا جاؤں گا۔ یہ کہہ کر کالو کھچڑی کھا لیتا ہے۔ کالو کہتا ہے، ارے میرے پیٹ میں یہ کیا ہو رہا ہے، مجھے بہت درد ہو رہا ہے، کوئی مجھے بچاؤ۔ لیکن جب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے
कालू की जहर से मौत हो जाती है। एक पेड़ के एक तरफ गोरी का और दूसरी तरफ कोरली का घोंसला था। गोरी और कालू बहुत ही बदमाश थे। उन्हें दूसरों को परेशान करने में बहुत मज़ा आता था। गोरी कहती है, सुनो कालू, बहुत दिन हो गए हमने कोई मौज मस्ती नहीं की है। आज मेरा मन मौज मस्ती करने का कर रहा है। किसी चिड़िया को परेशान करने का मन कर रहा है। कालू कहता है, हाँ, मेरा भी मन यही कर रहा है। सुना है हमारे इस पेड़ के दूसरी तरफ चिड़िया का घोंसला है, क्यों ना उस चिड़िया को परेशान किया जाए। कोरी कहती है, सही कह रहे हो कालू, आज तो हम उसका घोंसला ही तोड़ देंगे। दूसरी तरफ गोरी चिड़िया दाना लेने गई हुई थी। कालू गोरी वहाँ पहुँच जाते हैं। गोरी कहती है, वाह वाह, कितना सुंदर घोंसला बना रही है ये बेचारी चिड़िया। ये घोंसला तोड़ने का तो मज़ा ही कुछ और है। कालू कहता है, हाँ गोरी, आज तो मज़ा ही आ जाएगा। चिड़िया का मुंह तो देखने लायक होगा। अब जल्दी करो, कहीं वो चिड़िया ना आ जाए तो हमें घोंसला तोड़ते हुए देख लेगी। फिर दोनों घोंसला तोड़ देते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। जब गोल्डी वापस आती है तो टूटा हुआ घोंसला देखकर उदास हो जाती है और कहती है, अरे ये मेरा घोंसला किसने तोड़ दिया, अब मैं कहाँ रहूँगी। तभी पास में ही नारियल के पेड़ से आवाज़ आती है, गोल्डी परेशान मत हो, मैंने सब देखा है। तुम्हारा घोंसला उन दुष्ट कौवों ने तोड़ा है, लेकिन तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें अभी नया घर देता हूँ। ये कहकर नारियल का घर गोल्डी को एक नारियल का घर देता है। गोल्डी खुश हो जाती है और उसी में रहने लगती है। जब गोरी वहाँ आती है तो हैरान हो जाती है और कहती है, अरे ये घर कहाँ से आ गया, अभी तक तो नहीं था। तभी गोल्डी आ जाती है और कहती है, ये मेरा घर है, तुम यहाँ से भाग जाओ। तुम्हें क्या लगा तुम मेरा घर तोड़ोगी और मुझे पता नहीं चलेगा। मुझे पता है मेरा घोंसला तुमने तोड़ा था। गोरी कहती है, हाँ, मैंने ही घोंसला तोड़ा था, अब मैं ये घर भी तोड़ दूँगी। तभी नारियल के घर से गोरी के ऊपर नारियल बरसने लगते हैं और गोरी वहाँ से भाग जाती है। फिर गोल्डी हमेशा उस घर में खुशी खुशी रहती है। गोल्डी चिड़िया एक पेड़ पर घोंसला बनाए हुए थी। उसने 2 अंडे भी दिए हुए थे, लेकिन जिस पेड़ पर गोल्डी ने घोंसला बनाया था वो पेड़ काफ़ी कमज़ोर था। गोल्डी कहती है, वाह मेरे प्यारे अंडे, जल्दी ही मेरे अंडों में से बच्चे निकल आएंगे। मैं अपने बच्चों की खूब देखभाल करूंगी और उनको अच्छे से रखूंगी। फिर अंडों में से बच्चे निकल आते हैं और गोल्डी उनकी खूब देखभाल करती है। एक दिन गोल्डी का घोंसला जिस पेड़ पर था वो पेड़ टूट जाता है और नदी में गिर जाता है। गोल्डी का घोंसला पानी में बहने लगता है। गोल्डी के बच्चे चिल्लाते हैं, माँ मुझे बचाओ, मैं पानी में डूब जाऊंगा। गोल्डी कहती है, हाँ मैं आ रही हूँ बेटा, घोंसले पे ही रहना। फिर गोल्डी दोनों बच्चों को बचाकर नदी के बाहर निकाल लेती है। गोल्डी का बेटा कहता है, मम्मी अब हम क्या करेंगे और कहाँ रहेंगे। गोल्डी कहती है, परेशान मत हो बच्चों, मैं तो हूँ, कुछ न कुछ बंदोबस्त तो कर ही लूँगी। फिर गोल्डी अपने दोनों बच्चों को लेकर कालू के घर चली जाती है। कालू कहता है, गोल्डी तुम यहाँ क्यों आई हो अपने दोनों बच्चों को लेकर। गोल्डी कहती है, कालू मेरा घोंसला टूट गया है, जिस पेड़ पर मैंने घोंसला बनाया था वो नदी में गिर गया है, हमें अपने घर में रहने के लिए थोड़ी जगह दे दो। कालू कहता है, यहाँ से भाग जाओ तुम लोग, मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है।
मेरे लिए खुद ये घर छोटा है। ये कहकर कालू उन दोनों को बाहर निकाल देता है। गोल्डी अपने बच्चों को लेकर जंगल की ओर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तभी वहाँ पर एक बड़ा सा अंडा गोल्डी को दिखाई देता है। गोल्डी कहती है, ये कैसा अंडा है? ये तो बहुत बड़ा अंडा है। तभी वो अंडा एक अंडे के घर में बदल जाता है और आवाज़ आती है, मैं जादुई अंडा हूँ, मुझे बच्चे बहुत पसंद है। तुम्हारे बच्चों को परेशान होता हुआ मैं नहीं देख सकता, इसीलिए तुम इस घर में अपने बच्चों के साथ रह सकती हो। फिर गोल्डी उसी घर में रहने लगती है। कालू और गौरी ने चिड़िया के बच्चे नीलू को बचपन में ही चिड़िया से चुरा लिया था। वो उससे सारा काम करवाती और उसे मारती भी थी। गौरी कहती है, सुनो नीलू, तुम आजकल ठीक से काम नहीं कर रहे हो और ज़्यादा दूसरी चिड़ियों से बात मत किया करो। तुम्हें पता है ना, मुझे तुम्हारा दूसरी चिड़ियों से बात करना बिल्कुल पसंद नहीं है। नीलू कहता है, पर मैं तो सिर्फ बात करता हूँ, मैं अकेले काम करके बोर हो जाता हूँ। गौरी कहती है, ज़्यादा ज़बान मत लड़ाओ, मैं सब जानती हूँ। देख रहे हो कालू, कितनी ज़बान लड़ाने लगा है ये। कालू कहता है, हाँ देख रहा हूँ, और ज़्यादा ही ज़बान लड़ा रहा है। नीलू, अब तुम अगर किसी चिड़िया से बात करते हुए मिले तो बहुत पिटोगे, समझ रहे हो ना? नीलू कहता है, ठीक है, मैं किसी से बात नहीं करूँगा। फिर एक दिन नीलू जंगल में लकड़ियाँ लेने जा रहा था। तभी उसे एक चिड़िया पानी में डूबती हुई दिखती है। नीलू देर ना करते हुए उस चिड़िया को बचा लेता है। फिर नीलू पूछता है, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? वो गोल्डी चिड़िया थी। गोल्डी कहती है, शुक्रिया बचाने के लिए, मैं तो इस पेड़ पर बैठी हुई थी, तभी मेरा पैर फिसल गया और मैं यहाँ डूबने लगी। नीलू कहता है, चलो कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ। गोल्डी कहती है, ठीक है चलो। गोल्डी उसको अपने घर ले जाती है। कालू उसका घर देखकर हैरान हो जाता है। कालू कहता है, इतना सुंदर घर सोने का मैंने कभी नहीं देखा, क्या ये तुम्हारा घर है? गोल्डी कहती है, हाँ ये मेरा घर है, चलो अंदर से तुम्हें घर दिखाती हूँ। फिर तुम्हें एक बात भी बताना है। नीलू उसके साथ अंदर चला जाता है। नीलू कहता है, ये घर तो अंदर से भी बहुत सुंदर है, लेकिन तुम मुझे क्या बताना चाह रही थी? गोल्डी कहती है, तुम्हें पता है, जिन्हें तुम अपना माँ बाप मानते हो, गौरी और कालू, वो तुम्हारे असल माँ बाप नहीं हैं। गांव में सब लोग ये बात जानते हैं, लेकिन गौरी के मुँह न लगाने के कारण कोई तुम्हें बता नहीं पाया, इसीलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ। नीलू कहता है, क्या तुम सच कह रही हो? अगर ये बात सच है तो मैं उस घर में अब कभी नहीं जाऊँगा। अब मुझे समझ में आया, मुझे दूसरी चिड़ियों से बात करने क्यों नहीं दिया जाता था। गोल्डी कहती है, ठीक है, तुम मेरे घर में रह सकते हो, मेरे भी माँ बाप गुजर गए हैं, मैं भी इस घर में अकेली रहती हूँ। फिर दोनों खुशी खुशी घर में रहने लगते हैं। जंगल में एक जादुई पेड़ था, वो सबको जादुई घर देता था। एक बार कालू उस घर के पास जाता है और कहता है, सुनिए जादू के पेड़ जी, मेरा घर बारिश में टूट गया है, अब मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, कृपया मुझे रहने के लिए एक घर दे दें। जादुई पेड़ कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें घर दे रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ अच्छे लोगों को ही घर देता हूँ। तुम जब तक अच्छे काम करोगे तब तक ये घर तुम्हारे पास ही रहेगा। फिर जादुई पेड़ कालू को एक लोहे का जादुई घर देता है। कालू खुश हो जाता है और घर में रहने लगता है।
پھر ایک دن ایک چڑیا جادوئی گھر کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے، جادوئی پیڑ، میرا گھر کمزور ہونے کی وجہ سے ٹوٹ گیا ہے، کرپیا مجھے ایک گھر رہنے کے لیے دے دیں۔ جادوئی پیڑ اس سے بھی کہتا ہے، یہ گھر صرف اچھے لوگوں کے لیے ہے، جب تک تم اچھے کام کرتی رہو گی تب تک یہ گھر تمہارے پاس رہے گا۔ پھر جادوئی پیڑ گولڈی کو ایک سونے کا گھر دے دیتا ہے۔ جب کالو چڑیا کا سونے کا گھر دیکھتا ہے تو اسے جلن ہوتی ہے اور کالو کہتا ہے، ارے یہ چڑیا کو مجھ سے بھی اچھا گھر کیسے مل گیا؟ میرا تو گھر لوہے کا ہے اور اس چڑیا کا گھر سونے کا۔ میں اس چڑیا کو ابھی بتاتا ہوں۔ یہ کہہ کر کالو چڑیا کے گھر میں آگ لگا دیتا ہے اور کہتا ہے، ہاں ہاں، اب مزہ آیا، یہ چڑیا میرے سے بھی اچھے گھر پہ رہے گی۔ اب کہاں رہے گی تو چڑیا؟ تبھی گھر سے کالو کے اوپر آگ برسنے لگتی ہے اور کالو ڈر جاتا ہے۔ کالو کہتا ہے، مجھے معاف کر دو جادوئی پیڑ، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں اب یہ نہیں کروں گا۔ جادوئی پیڑ کہتا ہے، میں نے تمہیں پہلے ہی بتایا تھا، جب تک اچھے کام کرو گے تب تک یہاں رہو گے۔ پھر کالو کا گھر غائب ہو جاتا ہے اور کالو وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ گولڈی ایک پیڑ کے نیچے بیٹھی تھی۔ گولڈی کہتی ہے، ارے یہ دانہ یہاں کیسے آیا؟ مجھے لگتا ہے ضرور کوئی چڑیا یہاں دانہ بھول گئی ہوگی۔ مجھے انتظار کرنا پڑے گا تاکہ جس چڑیا کا یہ دانہ ہے وہ آ کے لے جائے۔ گولڈی کافی دیر تک انتظار کرتی رہتی ہے مگر وہاں کوئی نہیں ہوتا۔ گولڈی کہتی ہے، ارے بہت دیر ہو گئی، ابھی تک کوئی نہیں آیا، میں یہ دانہ اپنے گھر لے جاتی ہوں، ویسے بھی مجھے بھوک لگ رہی ہے، اگر کسی اور چڑیا کا ہوتا تو وہ ابھی تک لے جاتی۔ گولڈی دانہ لے کر اپنے گھر آ جاتی ہے اور کہتی ہے، میں یہ دانہ یہیں چھپا دیتی ہوں، کہیں کوئی اور چڑیا نہ لے جائے۔ یہ کہہ کر گولڈی دانہ چھپا دیتی ہے۔ وہیں دوسری اور کالو اور گوری اپنے گھر پر تھے۔ کالو کہتا ہے، گوری مجھے بھوک لگ رہی ہے، میرے لیے کھانا لگا دو۔ گوری کہتی ہے، ابھی لگاتی ہوں۔ تبھی گوری کو یاد آتا ہے اور کہتی ہے، ارے میں تو دانہ اس پیڑ کے نیچے ہی بھول آئی، ابھی جا کر لے کے آتی ہوں۔ گوری اس پیڑ کے نیچے پہنچ جاتی ہے۔ گوری کہتی ہے، ارے یہ دانہ کہاں چلے گیا؟ ضرور کسی چڑیا نے چرایا ہوگا، میں اس چور کو چھوڑوں ہی نہیں۔ گوری پھر ادھر ادھر ڈھونڈنے لگتی ہے۔ گوری گولڈی کے گھر پہنچ جاتی ہے اور کہتی ہے، گولڈی دروازہ کھولو جلدی، نہیں تو میں دروازہ توڑ کر اندر آ جاؤں گی۔ تبھی گولڈی دروازہ کھولتی ہے اور گوری اندر آ جاتی ہے۔ گوری کہتی ہے، تو تم ہو چور، تم نے میرا دانہ چرایا تھا، تم جیسی چڑیا سے اور کیا ہی امید کر سکتی ہوں۔ گولڈی کہتی ہے، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے بہن، میں نے آپ کے دانے نہیں چرائے ہیں، یہ تو مجھے پیڑ کے نیچے ڈلے ملے تھے۔ گوری کہتی ہے، مجھے معلوم ہے، میں تم جیسے لوگوں کو اچھے سے جانتی ہوں، کوئی چور یہ تھوڑی نہ کہتا ہے کہ وہ چور ہے۔ پھر گوری دانہ لے کر چلی جاتی ہے اور جب وہ ندی کے اوپر سے گزر رہی ہوتی ہے تو اسے چکر آ جاتے ہیں اور وہ ندی میں گر جاتی ہے۔ وہیں نیلو چڑا جو گولڈی کا پتی تھا وہ گوری کو ڈوبتا ہوا دیکھ لیتا ہے اور اسے ندی سے نکال کر گھر لے آتا ہے۔ گوری کہتی ہے، شکریہ نیلو، تم نے میری جان بچائی، اگر تم نہ ہوتے تو میں تو آج ڈوب ہی جاتی، اور معاف کر دو گولڈی، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط ویوہار کیا، تم چور نہیں ہو سکتی۔ گولڈی کہتی ہے، کوئی بات نہیں بہن، میں نے آپ کو معاف کیا، لیکن آگے سے کبھی کسی کے اوپر بنا جانے الزام مت لگانا۔ نیلو گولڈی کا بیٹا تھا۔
नीलू को गुलाब का बाग बहुत पसंद था। गोल्डी नीलू से कहती है, नीलू, तुम्हें क्या हो गया है? तुम हमेशा गुलाब के बाग में ही रहते हो। तुम्हारा घर पर मन क्यों नहीं लगता? नीलू कहता है, मम्मी, मुझे गुलाब बहुत पसंद है। उनकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। आप भी मेरे साथ चला करो। गोल्डी कहती है, अगर मैं तुम्हारे साथ वहाँ जाऊँगी तो हमारे घर का काम कौन करेगा? नीलू कहता है, ठीक है, मैं अकेले ही चला जाऊँगा। गोल्डी कहती है, मुझे तुम्हारे वहाँ जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम अब वहाँ नहीं जाओगे। नीलू कहता है, पर मुझे तो वहाँ जाना बहुत पसंद है। गोल्डी कहती है, तुम या तो यहाँ रह लो या उस गुलाब के बाग में। फिर गोल्डी नीलू को घर से बाहर निकाल देती है। नीलू सीधे गुलाब के बाग में चला जाता है और रोने लगता है। तभी आवाज़ आती है, क्यों रो रहे हो नीलू? नीलू डर जाता है और कहता है, तुम कौन हो और कहाँ हो? तभी आवाज़ आती है, मैं गुलाब का बाग हूँ, तुम डरो नहीं, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? नीलू कहता है, मेरी माँ ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है क्योंकि मुझे ये बाग बहुत पसंद है। अब मैं कहाँ रहूँगा? आवाज़ आती है, नीलू, कोई बात नहीं, तुम्हें अभी रहने की जगह देता हूँ। ये कहकर बाग नीलू को एक गुलाब का घर देता है। नीलू कहता है, शुक्रिया दोस्त, तुमने मुझे ये घर देकर बहुत मदद की है। फिर नीलू उस घर में रहने लगता है। वहीं दूसरी ओर गोल्डी भी अपने किए पर पछता रही थी और उदास थी। गोल्डी कहती है, मुझे नीलू पर इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था। बेचारा पता नहीं कहाँ होगा, क्या कर रहा होगा। मुझे उसको ढूंढना पड़ेगा, कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं। फिर गोल्डी गुलाब के बाग पहुंच जाती है और उसे गुलाब का घर दिखता है। गोल्डी कहती है, अरे ये क्या, ये तो पहले यहाँ नहीं था। तभी नीलू वहाँ आ जाता है। नीलू कहता है, माँ, आप यहाँ क्या कर रही हो? गोल्डी कहती है, बेटा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने गुस्से में तुम्हें घर से निकाल दिया। नीलू कहता है, कोई बात नहीं माँ, आप तो मेरी माँ हो, आपको मुझसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। अब आप यहीं मेरे साथ इस गुलाब के घर में रहना। फिर वो दोनों खुशी खुशी वहीं रहने लगते हैं। नीलू और कालू बहुत अच्छे दोस्त थे। वो हमेशा साथ में खेला करते थे। कालू की माँ गौरी को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। एक बार कालू और नीलू साथ में खेल रहे थे। कालू को खेलते खेलते चोट लग जाती है। कालू कहता है, नीलू, मेरे पैर में लग गई है, मुझे बचाओ। तभी वहाँ पर गौरी आ जाती है। गौरी कहती है, अरे मेरे बेटे को क्या हुआ? मेरे बेटे को तो चोट लग गई है, ज़रूर नीलू ने ही गिराया होगा। क्यों नीलू, तुम नहीं सुधरोगे? चलो मैं तुम्हारी शिकायत अभी तुम्हारी माँ से करती हूँ। गौरी दोनों बच्चों को लेकर गोल्डी के घर पहुँच जाती है। गौरी कहती है, देखो गोल्डी, तुम्हारे बेटे ने मेरे बेटे का क्या हाल किया है। तुम अपने बेटे को समझाती क्यों नहीं? गोल्डी कहती है, क्या हुआ बहन, ये कालू को क्या हो गया? गौरी कहती है, तुम्हारे बेटे ने मेरे कालू को गिरा दिया है। अपने बेटे को तुम संभाल कर रखा करो। आइंदा नीलू को हमेशा कालू से दूर ही रखना। गोल्डी कहती है, लेकिन वो दोनों तो दोस्त हैं, इनको अलग करना अच्छी बात नहीं है। गौरी कहती है, मैंने कह दिया ना, अपने बेटे को मेरे बेटे से दूर ही रखना। इतना कहकर गौरी वहाँ से चली जाती है। फिर एक दिन गौरी कालू से कहती है, कालू बेटा, जंगल से जाकर थोड़े फल ले आओ, आज मैं बहुत थकी हुई हूँ। कालू कहता है, ठीक है माँ, अभी लाता हूँ।
ये कहकर कालू जंगल की ओर चला जाता है। जब कालू नदी के ऊपर से गुजर रहा होता है तभी कालू को चक्कर आने लगते हैं और वो वहीं नदी में गिर जाता है। नीलू भी वहीं जंगल में फल लेने गया हुआ था। नीलू कालू को गिरता हुआ देख लेता है और उसे नदी से निकालकर कालू के घर ले आता है। कालू गोरी को पूरी बात बताता है, कैसे वो नदी में गिर गया था और कैसे नीलू ने उसकी जान बचाई। गोरी नीलू से कहती है, शुक्रिया बेटा, तुमने मेरे कालू की जान बचाई। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, मुझे माफ़ कर दो। नीलू कहता है, कोई बात नहीं आंटी, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। गोरली और नीलू बहुत गरीब थे। नीलू को उसके मालिक ने काम से निकाल दिया था। गोरली नीलू से कहती है, नीलू, अब हम क्या करेंगे? हमारे पास तो खाने का सामान भी ख़त्म होने वाला है और मकान मालिक भी हमसे किराया मांग रहा है। नीलू कहता है, मैं क्या करूं गोल्डी, मुझे कोई काम भी नहीं दे रहा है। मेरे सीधा होने की वजह से लोग मुझे बेवकूफ़ बनाते हैं। तभी वहाँ पर कालू आ जाता है। कालू कहता है, चलो मेरा किराया निकालो। तुम लोग तो बहुत कंजूस हो, मेरे घर में इतने टाइम से रह रहे हो और मेरा किराया 1 महीने से नहीं दिया। नीलू कहता है, कालू, मैं तुम्हारा किराया दे दूँगा, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, मैं अपने लिए काम ढूंढ रहा हूँ। कालू कहता है, तुम ना ही कभी काम ढूंढ पाओगे और ना ही कभी मेरे पैसे दे पाओगे, इसीलिए चलो मेरे घर से बाहर निकलो। ये कहकर कालू उन दोनों को बाहर निकाल देता है और वो दोनों उड़ते उड़ते जंगल की तरफ चले जाते हैं। तभी उनकी नज़र एक गुलाब के घर पर पड़ती है। गोल्डी कहती है, मुझे तो ये जादुई घर लग रहा है। तभी घर में से आवाज़ आती है, हाँ तुमने सही पहचाना, ये जादुई घर है। ये घर सिर्फ अच्छे लोगों के लिए है और तुम दोनों अच्छे हो, इसीलिए इस घर में रह सकते हो। तुम्हारे लिए इस घर में सारी खाने की चीज़ें और सोने का इंतज़ाम है ताकि तुम लोग घर में आराम से रहो। नीलू और गोल्डी खुश हो जाते हैं और उसी घर में रहने लगते हैं। एक दिन कालू उन दोनों का पता लगाते हुए वहाँ पहुँच जाता है और कहता है, ये चिड़िया कितने आराम से इस घर में रह रही है। इन लोगों ने मेरा किराया नहीं दिया, ना अब मैं इनका घर इनसे छीन लूँगा। तभी गुलाब के घर से कालू की ओर कांटे बरसने लगते हैं और कालू वहाँ से भाग जाता है। फिर नीलू और गोल्डी वहाँ सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। गोल्डी आज अपने बेटे नीलू के लिए काफ़ी सारे फल लाई थी। गोल्डी नीलू से कहती है, बेटा ये फल खा लो, सिर्फ तुम्हारे लिए लाई है। नीलू कहता है, पर मुझे तो फल पसंद नहीं है, मैं ये फल नहीं खाऊंगा। गोल्डी कहती है, बेटा ज़िद मत करो, फल तुम्हारे लिए सेहतमंद है। नीलू कहता है, पर मम्मी मुझे तो चॉकलेट खानी है, आप मेरे लिए चॉकलेट लेकर आओ। गोल्डी कहती है, नहीं बेटा, चॉकलेट आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट नहीं लाई हूँ। नीलू गुस्सा होकर चला जाता है। नीलू एक सेब के पेड़ के नीचे बैठ जाता है। सेब का पेड़ कहता है, नीलू बेटा, तुम मुझे भूखे लग रहे हो, लो मेरे ऊपर से सेब तोड़कर खा लो। नीलू कहता है, नहीं, मुझे तुम्हारे सेब पसंद नहीं है। तभी सेब का पेड़ नीलू को एक सेब का घर देता है। नीलू कहता है, नहीं, मुझे तुम्हारे सेब के घर में भी नहीं रहना। ये कहकर नीलू आम के पेड़ के नीचे बैठ जाता है।
तभी आम का पेड़ भी सेब के पेड़ की तरह नीलू से कहता है, नीलू बेटा, तुम मुझे भूखे लग रहे हो, तुम मेरे ऊपर से आम तोड़कर खा लो। नीलू कहता है, नहीं, मुझे आम पसंद नहीं है, मैं नहीं खाऊंगा। आम का पेड़ उसे आम का घर देता है, लेकिन नीलू उससे कहता है, नहीं, मुझे आम पसंद नहीं है और ना आम का घर। ये कहकर नीलू जंगल की ओर चला जाता है। तभी उसे एक चॉकलेट रास्ते पर पड़ी हुई मिलती है। नीलू कहता है, अरे, मैं तुम्हें ही तो ढूंढ रहा था, मुझे तो बहुत तेज़ भूख लगी है, मुझे फल नहीं पसंद और मुझे तो सिर्फ तुम पसंद हो। ये कहकर नीलू चॉकलेट खा लेता है। तभी उसे के दांतों में तेज़ दर्द होने लगता है। नीलू भागा भागा अपनी माँ के पास जाता है। नीलू गोल्डी को सारी बात बताता है। गोल्डी कहती है, मैंने तुम्हें मना करा था ना, चॉकलेट तुम्हारे लिए कितनी ख़राब है। अब आगे से फल खाना और हमेशा बड़ों की बात मानना और चॉकलेट कभी भी ना छूना। गोल्डी चिड़िया हमेशा की तरह जंगल में खाना ढूंढने जा रही थी। तभी उसे एक खरगोश झाड़ियों में फंसा हुआ दिखाई दिया। गोल्डी ने सोचा, अरे, ये क्या, ये तो खरगोश है जो झाड़ियों में फंसा हुआ है, मुझे इसकी मदद करनी पड़ेगी। तभी गोल्डी नीचे उतरती है और उस खरगोश को झाड़ियों से निकाल देती है। खरगोश झाड़ियों से निकलते ही भाग जाता है। गोल्डी कहती है, चलो, अच्छा हुआ मेरी नज़र इस खरगोश पर पड़ गई, वरना पता नहीं ये यहाँ पर कब तक फंसा रहता। वहीं एक आम का पेड़ ये सब देख रहा था। आम का पेड़ कहता है, ये चिड़िया, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, कैसे तुमने उस खरगोश को बचाया, मुझे तुम जैसे लोग बहुत पसंद है। गोल्डी यह सुनकर पहले तो डर जाती है और फिर कहती है, आप कौन हैं, कोई भूत वूत तो नहीं हो ना? आम का पेड़ कहता है, नहीं चिड़िया, मैं तो आम का पेड़ हूँ। अच्छा, तुम ये बताओ, तुम्हारा घर कहाँ है? गोल्डी कहती है, मेरे पास घर नहीं है, मैं तो ऐसे ही कभी एक पेड़ पर कभी दूसरे पेड़ पर सो जाती हूँ। ये सुनकर आम का पेड़ कहता है, तुम मेरे ऊपर रहने लग जाओ। गोल्डी कहती है, पर आपके पेड़ पर तो घोंसला नहीं है, फिर मैं कहाँ रहूँगी? तभी आम का पेड़ पर एक आम का घर आ जाता है। पेड़ कहता है, चिड़िया, तुम इस घर पर रह लो। चिड़िया उस घर में रहने लगती है। फिर एक दिन वहाँ कालू आ जाता है और गोल्डी से कहता है, ये चिड़िया, मेरे इस घर में क्या कर रही हो? ये मेरा घर है। गोल्डी कहती है, कालू, ये तुम्हारा घर नहीं है, ये मुझे आम के पेड़ ने दिया है। कालू कहता है, तुम यहाँ से जा रही हो या नहीं? मैं तुम्हें अभी इस घर से निकाल दूँगा। तभी पेड़ पर से आम कालू के सर पर बरसने लगते हैं। कालू डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। गोल्डी कहती है, शुक्रिया मेरे दोस्त, आज तुमने मुझे बेघर होने से बचा लिया। और बड़े बूढ़े अच्छे ही कहते हैं कि अच्छा करने वालों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। गोल्डी अपने घर में अपने 2 बच्चे नीलू और पीनू के साथ रहती थी। नीलू बहुत ही शरारती था और सबको परेशान करके रखता था। गोल्डी नीलू से कहती है, बेटा, ज़्यादा उधम मत किया करो, ज़्यादा उधम करने वाले बच्चे अच्छे नहीं होते हैं, बाद में कोई ना कोई नुकसान खा ही जाते हैं। नीलू कहता है, ठीक है माँ, कोई उधम नहीं करूँगा मैं। गोल्डी कहती है, अच्छा बच्चों, मैं जंगल में खाना लेने जा रही हूँ, आप लोग घर से बाहर मत जाना, ठीक है ना? नीलू कहता है,
ٹھیک ہے ماں، ہم باہر نہیں جائیں گے۔ اتنا کہہ کر گولڈی باہر چلی جاتی ہے۔ پھر نیلو پیلو سے کہتا ہے، چلو بہن، باہر گھومنے چلتے ہیں۔ پیلو کہتی ہے، پر ابھی تو ممی باہر گئی ہے، ممی نے منع کیا تھا باہر جانے کو۔ نیلو کہتا ہے، ارے میں تو ہوں، تم چلو، ہم ممی کے آنے سے پہلے واپس آ جائیں گے۔ پیلو کہتی ہے، نہیں میں نہیں جاؤں گی، مجھے ڈر لگتا ہے۔ نیلو اسے زبردستی لے جاتا ہے۔ وہ دونوں پڑوس میں ہی کیلے کے باغ میں چلے جاتے ہیں۔ دونوں وہیں کھیل ہی رہے ہوتے ہیں تو وہاں کالو آ جاتا ہے۔ کالو کہتا ہے، بچوں تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ یہ جگہ کھیلنے کے لیے نہیں ہے، تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ۔ نیلو کہتا ہے، ہاں انکل، ہم جا رہے ہیں، بس تھوڑی دیر اور۔ کالو کہتا ہے، ٹھیک ہے، جلدی چلے جانا۔ یہ کہہ کر کالو چلا جاتا ہے۔ وہ دونوں پھر کھیلنے لگتے ہیں۔ تبھی وہاں پر سانپ آ جاتا ہے اور نیلو کو کاٹ لیتا ہے اور نیلو رونے لگتا ہے۔ نیلو کہتا ہے، بہن مجھے بچا لو، مجھے سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ پیلو کہتی ہے، میں جلدی سے ممی کو بلا کے لاتی ہوں۔ پیلو کوللی کو بلانے چلی جاتی ہے۔ کوللی کہتی ہے، میں نے تم سے منع کیا تھا نا، گھر سے باہر مت جانا، دیکھا کیا نتیجہ ہوا تمہارے باہر جانے کا۔ پیلو کہتا ہے، اب میں ہمیشہ آپ کی بات مانوں گا، آپ کی بات کبھی نہیں ٹالوں گا۔ پھر گولڈی نیلو کو بچا لیتی ہے اور پھر وہ لوگ خوشی خوشی رہتے ہیں۔ نیلو نام کا ایک چڈا گوری اور کالو کے گھر پر رہتا تھا۔ گوری اس کو بہت پریشان کرتی تھی اور اس سے سارا گھر کا کام کرواتی تھی۔ ایک بار نیلو بیمار پڑ جاتا ہے اور گوری سے کہتا ہے، گوری آنٹی مجھے کچھ روپے دے دو، میں بہت بیمار ہوں، مجھے دوائی لینے جانا ہے۔ گوری کہتی ہے، زیادہ ڈرامہ مت کر سمجھے نیلو، یہاں پہ کوئی ڈرامہ نہیں چلے گا، جب دیکھو تب بیمار ہی ہو جاتے ہو، تمہاری دوائی کے لیے ہی کیا کالو کماتا ہے، چلو برتن دھو جا کے۔ نیلو کہتا ہے، آنٹی میں سچ میں بہت بیمار ہوں، بس آج سے اور تھوڑے سے پیسے دے دو، آپ سے پھر نہیں مانگوں گا۔ گوری کہتی ہے، میں تم سے کہہ چکی ہوں تجھے کوئی پیسہ نہیں ملے گا، بس اب تم جا کے برتن دھو ورنہ میں تمہیں اس گھر سے نکال دوں گی۔ نیلو کہتا ہے، آنٹی بس آخری بار پیسے دے دو، میں آپ کو پیسے واپس لوٹا دوں گا۔ گوری کہتی ہے، مطلب تم نہیں مانو گے، چلو اب اس گھر سے نکل جاؤ، تمہاری اس گھر میں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر گوری نیلو کو گھر سے باہر نکال دیتی ہے۔ جب کالو گھر پر آتا ہے تو گوری سے پوچھتا ہے، ارے گوری، آج نیلو دکھائی نہیں دے رہا، کہاں گیا ہے؟ گوری کہتی ہے، آج میں نے اس کو گھر سے باہر بھگا دیا ہے، وہ ویسے بھی ہمارے کام کا نہیں تھا، آئے دن بیمار ہو جاتا تھا، کیا تو اس کے لیے ہی پیسے کماتا ہو جو وہ سارا دوائی میں خرچہ کر دو؟ کالو کہتا ہے، نہیں نہیں، چلو اچھا ہے تم نے اسے گھر سے نکال دیا، ٹھیک ہے مجھے کھانا دو اب۔ وہیں دوسری اور نیلو ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ جاتا ہے۔ جب بھی نیلو اداس ہوتا تھا تو وہ ہمیشہ اسی آم کے پیڑ کے نیچے آتا تھا۔ اس بار بھی اس نے ایسا ہی کیا۔ نیلو کہتا ہے، اب میں کیا کروں، کہاں جاؤں، اب تو سونے کے لیے چھت بھی نہیں ہے اور بھوک سے میرے پیٹ میں بھی درد ہو رہا ہے۔ تبھی وہاں سے آواز آتی ہے،
नीलू मेरे दोस्त, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यह सुनकर नीलू डर जाता है और कहता है, कौन हो तुम और कहाँ हो? मुझे दिखाई नहीं दे रहे। आम का पेड़ कहता है, मैं तुम्हारा दोस्त तुम्हारे सामने ही हूँ। मैं आम का पेड़ हूँ। मुझे पता है तुम उदास हो और बीमार भी लग रहे हो। चलो अब ये आम खाओ। ये कहकर आम का पेड़ एक आम गिरा देता है। नीलू उस आम को खा लेता है और बिल्कुल ठीक हो जाता है। नीलू कहता है, शुक्रिया दोस्त, तुमने तो मुझे ठीक कर दिया। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ क्योंकि मुझे रात में सोने के लिए घर भी ढूंढना है। आम का पेड़ कहता है, मेरे होते हुए तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये कहकर वहाँ एक आम का घर आ जाता है। नीलू कहता है, शुक्रिया दोस्त। फिर नीलू उसमें रहने लगता है। दूसरी ओर जब कालू और गोरी को ये पता चलता है कि नीलू के पास इतना सुंदर घर है तो उनसे रहा नहीं जाता। गौरी कहती है, मुझे नहीं पता था कालू के पास इतना सुंदर घर भी है। हमें उसे ये घर छीनना पड़ेगा। भला हम क्यों इतने खराब घर में रहें और नीलू इतने अच्छे घर में रह रहा है। कालू कहता है, ठीक है, तुम सही कह रही हो, चलो चलते हैं, उसके घर पर कब्ज़ा कर लेते हैं। कालू और गोरी वहाँ पहुँच जाते हैं और घर में घुसने की कोशिश करते हैं। तभी उस घर से आम गोलियों की तरह उनके ऊपर हमला कर देते हैं। गोरी कहती है, अरे मेरा सर फूट गया, मेरी कमर। चलो कालू भागो यहाँ से, वरना ये आम तो हमें मार ही देंगे। ये कहकर वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं और नीलू हमेशा हमेशा उसी घर में रहने लगता है।